Hello everyone, this is Nidhi Baglikar, Assistant Professor at Biyani Girls College. On behalf of Guru GPO, I welcome you all. As you all can see, today I am going to discuss the topic types of partners. In my previous lectures, I had given an introduction about the Indian Partnership Act 1932. I had also discussed about the types of partnerships, and today I am going to discuss about the types of partners. See, from the legal point of view, actually the rights and duties of all the partners are almost same, but practically there can be different types of partners depending upon the size and operations of the partnership firm. So let us discuss the various types of partners which are existing importantly, majorly in today's era. First one is actual partner. As the name itself suggests, this actual partner actually actively participates in the organization, in the firm's operation. ठीक है? Actual partner जो होता है, इसे हम active partner भी कहते हैं. Okay, so this is the active partner. Active partner will not only invest in the firm, okay, he will invest in the capital. Along with that, he will participate in the profits and losses, and also he will actively contribute in the operations and in the day-to-day working of the organization. Okay, so actual partner या active partner वो होता है who is contributing in capital. Capital में investment करेगा, profits and losses भी share करेगा, and at the same time he will be acting in real in the operations of the firm. जो भी operations day to day working हो रही है partnership firm में, उन सभी में वो actively participate करेगा. That is why such a person is known as actual partner or active partner. Second one is dormant partner. Dormant का मतलब होता है inactive और स्लीपिंग. ओके, डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव और स्लीपिंग. तो डॉर्मेंट पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं. स्लीपिंग पार्टनर इज just the reverse of actual partner. It is just the antonym or the opposite of actual partner. Sleeping partner, he will contribute in the capital. Okay, firm में investment करेगा, capital में contribution करेगा, profits and losses share करेगा, लेकिन ये partner कभी भी पार्टनरशिप फर्म के डे टू डे ऑपरेशंस में, जितने भी उसकी वर्किंग है रूटीन अफेयर्स में, कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है. ओके, द स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर नेवर पार्टिसिपेट्स इन द डे टू डे ऑपरेशंस एंड वर्किंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. दैट इज व्हाई सच अ पार्टनर इज नोन एज स्लीपिंग पार्टनर, बिकॉज ही इज नॉट participating in the activities of the firm. He is unaware of what is happening inside the firm. He is just contributing his capital. He will just share the profits and losses. Rest he is not at all responsible. But sleeping partner will be always liable to third parties. Okay, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डे टू डे अफेयर्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जो थर्ड पार्टीज हैं उनकी तरफ वो लायबल नहीं होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, कोई भी पार्टनर हो वो थर्ड पार्टीज के लिए उतना ही लायबल होगा जितना कि एक एक्टिव या फिर एक्चुअल पार्टनर होता है. ओके, सो दिस वर द टू कैटेगरीज ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर एंड अनदर वन इज डोमिनेंट पार्टनर. थर्ड वन इज नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में केवल अपने नेम के लिए क्या करता है, पार्टनर बनता है. नेम के लिए पार्टनर बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ पर्टिकुलर एनी पर्सन इज हैविंग अ हाई गुडविल इन द मार्केट. ओके, किसी पर्सन की बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में, बहुत अच्छा नेम एंड फेम है, और उस नेम को यूज करने के लिए अगर मैं अपनी फर्म में उस पर्सन को पार्टनर बना रही हूँ तो वो पर्सन कैसा रहेगा, नॉमिनल पार्टनर रहेगा. ओके, ऐसा पार्टनर जो कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूट मे बी करे मे बी ना करे. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉमिनल पार्टनर विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द कैपिटल. ओके, मे बी पॉसिबल ही इज शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज. ओके, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में वो शेयरिंग करेगा, एंड लेकिन जो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो केवल इतना होगा कि सिंस ही इज वेरी पॉपुलर, ही इज हैविंग अ हाई गुडविल इन द मार्केट, इसलिए ऐसे पर्सन को हमारे फर्म में हम क्या बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं. तो ऐसे पर्सन का बेनिफिट क्या होगा पार्टनरशिप फर्म को,
क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए, अगर सपोज मेरी फर्म में और मैंने किसी हाई गुडविल वाले पर्सन को अपनी फर्म में पार्टनर बना लिया, तो उससे मुझे फायदा ये होगा कि जो भी लोन मुझे लेना है, जो भी क्रेडिट मुझे लेना है, मे बी मुझे रीजनेबल रेट्स पे मिल जाए, मे बी मुझे एट मिनिमम कॉस्ट पे मुझे मिल जाए वो सारे लोन्स, वो सारा क्रेडिट। ओके, तो नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर हु इज contributing or who is participating in a partnership firm, who is acting as a partner in a partnership firm only for name, okay, due to high goodwill. अगेन, जितनी भी थर्ड पार्टीज होंगी, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगी, उन सभी के लिए नॉमिनल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा लाइक द एक्चुअल पार्टनर। ओके, कभी भी कोई भी पार्टनर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता ये बोलकर कि वी आर नॉट एक्चुअल पार्टनर्स और वी आर नॉट एक्टिव पार्टनर्स, सो वी आर नॉट लायबल टू थर्ड पार्टीज। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी पार्टनर हो वो थर्ड पार्टीज के लिए उतना ही लायबल रहेगा जितना कि एक एक्चुअल या फिर एक्टिव पार्टनर होता है। फोर्थ कैटेगरी पे हमारा आता है पार्टनर बाय इस्टॉपेल, जो कि अंडर सेक्शन 28 स्टिपुलेटेड है। इस्टॉपेल का मतलब होता है रोक लगाना। ओके, इस्टॉपेल का मतलब होता है स्टॉप करना, टू स्टॉप समवन। ओके, पार्टनर बाय इस्टॉपेल को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। पार्टनर बाय इस्टॉपेल को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट भी कहते हैं। होल्डिंग आउट का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, जो आप एक्चुअली नहीं हो। ओके, होल्ड आउट करना मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ओके, इफ आई एम गोइंग इन अ पार्टी एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज इफ आई एम अ सेलिब्रिटी, मैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसे होल्ड आउट कर रही हूँ एज इफ आई एम अ बिग सेलिब्रिटी, तो आई विल बी कंसिडर्ड एज दैट आई एम होल्डिंग आउट माई सेल्फ, राइट। अब बात करते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की। ओके, पार्टनर बाय इस्टॉपेल की। If any person by any conduct or behavior, may be orally, may be in written manner, है ना, किसी भी अपने behavior से या अपने conduct से ऐसा show करता है या ऐसा represent करता है that he or she is actually a partner in any firm, okay, but when actually he is not, मतलब कोई पर्सन या तो अपने कंडक्ट से या अपने बिहेवियर से या फिर रिटर्न मैनर में या ओरल मैनर में ये रिप्रेजेंट कर रहा हो या ये शो कर रहा हो कि वो किसी एबीसी फर्म में पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअली नहीं है। और इस रिप्रेजेंटेशन पे अगर कोई थर्ड पार्टी बिलीव करके उस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे देती है, तो उस पर्टिकुलर लोन के लिए ये पर्टिकुलर पार्टनर बाय इस्टॉपेल भी क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ, जैसे ABC एंड कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ABC एंड कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म है। D जो है इस फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन किसी इवेंट में कोई वर्कशॉप है और वहाँ पे ABC एंड कंपनी भी है और वहाँ पे D भी है, और D थर्ड पार्टीज को ये शो कर रहा है, अपने कंडक्ट से ये बता रहा है, ये बिहेवियर से बता रहा है कि मैं तो ABC एंड कंपनी में पार्टनर हूँ, आई एम अ पार्टनर इन ABC एंड कंपनी, ठीक है। E जो है वो इस D की बात पे बिलीव कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है, ओके, एंड E ABC एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या दे देता है, लोन ऑफर कर देता है। तो लेटर ऑन पार्टनर बाय इस्टॉपेल सेक्शन 28 ये बोलता है, एज पर सेक्शन 28, लेटर ऑन इफ एनी थर्ड पार्टी, जिस हमारे केस में E है, इफ दैट थर्ड पार्टी हैज ऑफर्ड एनी लोन टू द पार्टनरशिप फर्म on believing on the conduct of the partner by estoppel, that is holding out, which is in our case D, then later on such a partner cannot deny himself from that particular transaction, ठीक है। D भी equally responsible रहेगा उस particular loan transaction के लिए, since वो partner तो है नहीं, ठीक है, ABC एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर तो है नहीं, लेकिन सिंस उसने ऐसा रिप्रेजेंट किया था कि वो पार्टनर है, तो उसके इस कंडक्ट के लिए एज अ पेनलाइजिंग मेजर उसको क्या किया जाएगा, लायबल या फिर रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा। इसीलिए इस पर्सन को पार्टनर बाय इस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं, बिकॉज सच अ पर्सन इज होल्डिंग आउट हिमसेल्फ, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए लेटर ऑन उसके ऊपर रोक लगाई जाती है, उसको स्टॉप किया जाता है ये डिनाई करने से कि अब उस ट्रांजेक्शन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं होगा, ही विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विथ ABC एंड कंपनी।
So these four were the categories of partners, that is actual partner और active partner जो actively contribute करता है, day to day activities में involve होता है. Second है dormant partner या sleeping partner जिसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ capital में contribute करना. He is unaware of the activities of the day to day affairs of the partnership firm, इसीलिए उसे स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं. थर्ड होता है नॉमिनल पार्टनर जो केवल इसलिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनता है बिकॉज ही इज हैविंग अ हाई गुडविल और पार्टनरशिप फर्म को इजी टर्म्स पे क्रेडिट या लोन मिल जाए, इसीलिए उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो पार्टनर बनाया जाता है. एंड फोर्थ कैटेगरी है पार्टनर बाय स्टॉपेल या होल्डिंग आउट, जिसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने बिहेवियर या अपने कंडक्ट से ये शो करता है कि वो उस पर्टिकुलर फर्म में पार्टनर है जबकि वो एक्चुअली नहीं है. तो लेटर ऑन अगर किसी थर्ड पार्टी ने उसके इस कंडक्ट पे बिलीव करते हुए पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उस ट्रांजैक्शन के लिए हमारा ये होल्डिंग आउट पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेगा. So this was all about the types of partners. Hope you understood the various categories of partners. Do like the video and share it to the maximum, and if you have not subscribed to our channel, do subscribe it. Give your comments in the comment section below, and thank you so much for watching the video.